جو چیز مجھے پسند آ جائے وہ میری ہوتی ہے، تم بھی پسند آ گئی ہو مجھے۔ وہ مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والی غریب لڑکی تھی، جس کی دوستی یونیورسٹی کی سب سے امیر لڑکی مایا سے ہوئی تھی۔ وہ مایا کے گھر اس کی برتھ ڈے پارٹی میں گئی تھی۔ مایا نے اسے ڈریس چینج کرنے کے لیے دیا تھا، پر وہ غلطی سے مایا کی جگہ اس کے بڑے بھائی شاہرون کادانی کے کمرے میں چلی گئی، جس کے کمرے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ انڈر ورلڈ کا بادشاہ مافیا کنگ تھا۔ کپڑے چینج کرتے وہ جو ہی واش روم سے باہر نکلنے لگی، شاہرون کو دیکھ ڈر کر واش روم کا دروازہ واپس بند کرنے لگی تھی، پر اس سے پہلے شاہرون نے غصے سے دروازہ کھولا اور اس پر نگاہ پڑتے ہی 20 سالہ ماروی ایک غریب گھرانے میں بڑی ہوئی تھی، جہاں اس کے علاوہ اور 2 بہنیں بھی تھیں۔ اس نے شروع سے ہی خود کی خواہشات کا گلا گھونٹا تھا۔ اس کے ابا تو اسے یونیورسٹی بھی جانے نہیں دینا چاہتے تھے، مگر اپنی ضدی طبیعت کی وجہ سے اس نے اپنے ابا کو منا کر ہی دم لیا تھا۔ آج اس کی یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ وہ سادے سے لباس کے اوپر چادر اوڑھے گئی تھی، مگر وہاں لڑکیوں کو نت نئے کپڑوں میں ملبوس دیکھ وہ کیپلیکسٹی کا شکار ہونے لگی۔ بار بار اپنی چادر کھینچ کر درست کرتی رہی۔ جیسے ہی وہ کلاس میں داخل ہوئی تو لڑکیوں نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے منہ بنا لیا۔ البتہ لڑکوں کا رویہ کچھ مختلف تھا، کیونکہ بے شک وہ سادی تھی مگر دکھنے میں انتہا کی حسین تھی۔ اوپر سے اس کی معصومیت نے تو 4 چاند لگا دیے تھے۔ جیسے ہی وہ کسی بھی لڑکی کے پاس بیٹھنے لگتی، وہ بار بار اپنا بیگ رکھ دیتی ساتھ والی چیئر پر کہ یہ بک ہے۔ ان کا یہ ظلمانہ سلوک دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ دوسری طرف جیسے ہی ایک پینٹ شرٹ میں ملبوس لڑکی کندھے تک آتے گولڈن بالوں والی، ہاتھوں میں بینڈز پہنے اس کے پاس سے گزر کر آگے آئی تو اس کے برعکس لوگ اسے بڑھ چڑھ کر پاس بیٹھنے کی آفر کرنے لگے تھے۔ کرتے بھی کیوں نہ، کیونکہ وہ مایا کادوانی تھی، مشہور بزنس ٹائکون کی بیٹی۔ کون نہیں جانتا تھا اسے۔ مایا بیٹھنے کی جگہ تلاش کر ہی رہی تھی کہ لڑکیوں اور لڑکوں کا چاپلوسانہ رویہ دیکھ اس نے منہ بنایا۔ دوسری طرف اس نے ماروی کو بیٹھنے اور جگہ تلاش کرنے کی تقدد کرتے دلچسپی سے دیکھا تھا۔ تم یہاں نہیں بیٹھ سکتی، سمجھی، کہیں پیچھے جا کر بیٹھو اپنی مڈل کلاس لڑکیوں کے درمیان۔ مائرا نامی لڑکی جو خود بھی امیر باپ کی بیٹی تھی، غرور سے اس کا بیگ نیچے پھینکتی بولی تو اس کے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر بس باہر آنے کو تھے، جب وہ تھک ہار کر پیچھے جا بیٹھی تھی۔ تم بیٹھو نا میرے ساتھ مایا، اچھی دوستی ہو جائے گی ہمارے بیچ۔ وہ بال لہراتی بولی، جیسے اس کو تو وہ انکار کر ہی نہیں پائے گی۔ ویسے بھی مایا کی گڈ بکس میں رہنا اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتا تھا، اور پھر اس کا بھائی شاہرون کادوانی تو پوری دنیا کی سبھی لڑکیاں اس پہ مرتی تھی، کیا پتہ یہ لڑکی اسے پسند کر کے اسے بابی ہی بنا لے۔ مگر اس کی خوش فہمیوں پر اوس تب پڑی جب مایا نحوست سے بولی، یو آر ناٹ مائی ٹائپ۔ وہ ببل چباتے پیچھے جا کر این ماروی کے پاس پٹک کر بیٹھی کہ وہ ہڑبڑا سی گئی۔ حیرت جو تھی کہ اتنے امیر باپ کی بیٹی اس کے پاس کیسے بیٹھ گئی جسے کوئی اپنے پاس نہ بٹھا رہا تھا۔ ہائی، مائی نیم از مایا اینڈ یورز؟ مایا اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے بولی، جیسے اس نے پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ ہائی، آئی ایم ماروی۔ وہ ہچکچاتی ہوئی بولی، کیوٹ جسٹ لائک یو۔ وہ اس کو دلچسپ نظروں سے دیکھ بولی۔ جلد ہی لیکچر سٹارٹ ہو گیا۔ لیکچر آف ہوتے ہی مایا کھڑے ہوتے بولی، چلو کنٹین چلتے ہیں۔ اس لیکچر نے تو دماغ پکا ڈالا۔ وہ کہنے کے ساتھ اسے کھینچ کر کنٹین کی طرف لے جا چکی تھی۔ ایک چھوٹا بچہ آ کر جلدی ہی اس کا آرڈر لے کر گیا۔ جو اس نے اپنے لیے برگر فرائز منگوائے تھے وہی ماروی کے لیے بھی منگوائے تھے۔ آپ نے 2 چیزیں کیوں منگوائی؟ اتنا کھاتی ہیں آپ؟ وہ آنکھیں بڑی کیے بولی، جس پر مایا کا قہقہ گونجا تھا اور وہ اس کی معصومیت کو دیکھ کر رہ گئی۔ کیا تمہیں میں ڈائناسور لگتی ہوں کہ اتنا کچھ کھا جاؤں گی؟ آف کورس، تمہارے لیے آرڈر کی ہے۔ اور اس کی بات اس پر دیکھ کر رہ گئی۔ ابھی تو ان کی دوستی بھی نہیں ہوئی تھی اور اس کے سر اتنا احسان کیوں کر رہی تھی؟ مگر کیوں کی تھی؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی، کیونکہ تم میری دوست ہو، اپنی دوست کے لیے اتنا تو کر سکتی ہوں میں۔ وہ کندھے چاکتی بولی، لیکن ہماری دوستی کب ہوئی؟ وہ خوشی اور اشتیاق بھری حیرت سے بولی تھی، کیونکہ مطلب پرست دنیا میں ایک یہی لڑکی اسے دوست بنانا چاہتی تھی خود سے، ورنہ باقی تو اسے منہ بھی نہ لگا رہے تھے۔ ابھی ہی تو ہوئی ہے، وہ اس کو ساتھ جوڑے ہوئے بولی، جب وہ دونوں ہی ہنس دیے تھی۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، جس پر مایا نے برگر کی ایک بڑی سی بائٹ لیتے ہوئے اسے دیکھا تھا جواب طلب نگاہوں سے۔ کلاس میں اتنی لڑکیاں تھیں، لیکن آپ نے مجھ سے ہی دوستی کیوں کی؟ میں تو آپ جیسے لوگوں کے سٹینڈرڈ کے برابر بھی نہیں ہوں۔ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں اور میرے پاس تو آپ کے بدلے میں دینے کے لیے کچھ ہی نہیں۔ پھر بھی آپ نے مجھے ہی کیوں چنا دوستی کے لیے؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مایا اس کو کیوں دوست بنانا چاہتی ہے، جبکہ اس سے کئی ہائی لیول کی لڑکیاں کلاس میں موجود تھیں۔ جس پر وہ برگر رکھتے ہوئے گہرا سانس بھرتے اس کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ تمہاری طرح معصوم اور سادہ نہیں ہے۔ تم مخلص ہو، لیکن وہ چائنا کا مال ہے۔
वो नहूत भरे लहजे जिस पर वो खिलखिलाकर हंसी थी। यही बात तुम्हें पसंद है, मुझे तुम्हारी ये प्योर हंसी। वो इसकी गाल पर चुटकी बरते बोली थी, जिस पर इसके गाल शर्म से सुर्ख हुए थे। और एक बार फिर कंटीन में माया का कहका गूंजा था, जिसे दो हसद भरी नजरों ने कहर से देखा था। आहिस्ता आहिस्ता माया और मारवी की दोस्ती गहरी होती चली जा रही थी। चाहे छोटी सी छोटी बात भी क्यों ना होती, वो दोनों एक दूसरे से जरूर शेयर करती थी। माया की बातों में ज्यादातर इसके बड़े भाई शहरोन कादवानी का जिक्र ही रहता था, जिसकी वजह से अब तो मारवी को भी इससे मिलने का तजस्सुस होने लगा था। मगर जैसे वो बताती थी कि वो कितना सख्त है, किसी कैसी कैसी सजाएं देता है, तो इसकी रूह भी कांप जाती थी। ये और जो मिलने की ख्वाहिश थी वो मर जाती। एक हफ्ता होने को आया था और माया ने मारवी का सर खाया हुआ था, ये कह कह के कि इसकी बर्थडे है और मारवी को लाजमी इसके बर्थडे में आना है, क्योंकि यहाँ इसकी वो इकलौती बेस्ट फ्रेंड थी। दोस्त और भी थे, बेस्ट फ्रेंड तो वही थी ना, इसलिए वो इसको लाजमी बुलवाना चाहती थी। आज भी वो इसके तरले डाल रही थी, मगर वो एक ही बात कह रही थी कि इसको इसके अब्बा इजाज़त नहीं देंगे। जिस पर माया ने कहा था, तुम्हारे अब्बा से तो मैं चुटकियों में इजाज़त ले लूँगी, तुम अपनी बात करो, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम ही मेरी बर्थडे पर नहीं आना चाहती। वो उदास चेहरा बनाते हुए बोली थी, जिस पर मारवी को तकलीफ हुई थी। इसने फौरन नफ़ी में सर हिलाया था। ऐसी बात नहीं है माया, हकीकत यही है कि अब्बा नहीं मानेंगे। मैंने इनसे बात करके देख चुकी हूँ, मगर वो नहीं माने तो फिर वो तुम्हारी बात कैसे मानेंगे, वो बेचारगी से बोली। जिस पर माया ने इससे वादा किया था कि आज वो इसके घर जाएगी और इसके अब्बा से इजाज़त लेगी। इसलिए आज माया अपनी गाड़ी में इसको इसके घर छोड़ने गई थी और साथ में इजाज़त लेने गई थी। जैसे ही वो अंदर आए तो इसकी अम्मा अब्बा इस प्यारी सी लड़की को, जो कि एक गाड़ी से निकली थी, देखकर हैरान रह गए। जैसे ही वो अंदर आए, मारवी ने फौरन इसका तारुफ करवाया था अपने माँ बाप से। अम्मा अब्बा, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है माया, इसने मेरा बहुत साथ दिया है। जब से मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, यही एक लड़की है जो मेरे साथ हर वक्त साई की तरह रहती है, वरना दूसरी लड़कियां तो मुझे क्लास से निकालने के चक्करों में थी और बहुत अजियत देती थी। सिर्फ माया की वजह से मैं आज तक बची रही, वो एक ही सांस में बोली थी। जिस पर माया ने इसे टोक दिया, जो इसे फरिश्ता सिफ्त बनाकर पेश कर रही थी, मगर वो भी क्या करती, सच ही तो कह रही थी। इसके अम्मा अब्बा भी तशकर भरी नज़रों से इसको देखने लगे थे। इसके सर पर प्यार दिया था। इसकी अम्मा फौरन किचन में कुछ लेने चली गई थी, जबकि अब्बा जो बाहर जाने लगे थे। माया के रुकने पर इन दोनों के पास बैठ गए। अंकल, मुझे आपसे एक बात करनी थी, माया हाथ मसलते हुए बोली। जिस पर मारवी के बाप ने इसे देखा। हाँ जी बोलो बेटा, मैं सुन रहा हूँ। इसकी तरफ देखते ही इसकी कश्मकश को उलझने के लिए बोले थे, अंकल परसों मेरी बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि मारवी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो मेरे साथ मेरी बर्थडे पर हो, मगर वो कह रही है आप इसे आने की इजाज़त नहीं दे रहे। ऐसा क्यों है अंकल, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, वो इनकी तरफ देखते हुए बोली थी। जिस पर वो बेबसी से बोले थे, बेटा तुम्हें पता तो है आजकल ज़माना कितना ख़राब है, मैं रात को कैसे अपनी बेटी को बाहर भेज दूँ। वो इसको ज़माने की तल हकीकत का हवाला देते हुए बोले थे। जिस पर वो फ़ौरन से बोली, अंकल अब आप तो मुझसे मिल चुके हैं ना, आपको पता चल गया होगा मैं कैसी हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं खुद मारवी को अपनी गाड़ी में घर छोड़ कर जाऊँगी। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ, आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो एकदम मिन्नत भरे लहजे में बोली थी, तो वो कशमकश का शिकार हुए थे। इसे इनकार भी नहीं कर पा रहे थे। एक वाहद ही तो इनकी बेटी की दोस्त थी, अगर इसको भी वो इनकार कर देते तो ऐसा कैसे चलता। कुछ देर मनाने के बाद आखिरकार वो मारवी के अब्बा मान ही गए थे, जिस पे वो दोनों खुशी से चीख उठी थी। वो दोनों के सर पर प्यार देते बाहर जा चुके थे, जबकि वो एक दूसरे के गले लग गई थी। मैंने अपने हाथों से बिरयानी बनाई है, क्या तुम मेरे हाथों की बिरयानी खाओगी? बेशक तुम्हारे 5 स्टार होटल के खाने की तरह तो नहीं होगी, लेकिन मुझे उम्मीद है शायद तुम्हें पसंद आए, वो इसकी तरफ देखते हुए उम्मीद से बोली। तो माया ने फौरन इस बात में सर हिलाया था। हाँ हाँ क्यों नहीं, कोई चीज़ तुम बनाओ और मैं ना खाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है। इसकी बात सुनते ही खुशी से वो इसके लिए बिरयानी प्लेट में डालकर ले आई, जो माया ने बहुत शौक से खाई थी। एक प्लेट से तकरीबन ज़्यादा ही वो खा चुकी थी। इसके घर जाने का वक्त आ गया था। अगले दिन वो सुबह जब यूनिवर्सिटी में आई तो मारवी ने इसे गले लगाकर इसका बर्थडे विश किया था, जिस पे वो बहुत खुश हुई थी। आ रही हो ना तुम आज सालगिरह पर, वो इसको देखते हुए बोली थी, जिस हंसी। हाँ हाँ बाबा, आ रही हूँ। एक हफ्ते से तुमने मेरा दिमाग खराब किया है, तो क्या अब भी नहीं आना। आज वो दोनों जल्दी ही घर चली गई थी, जबकि माया ने अपनी पूरी क्लास को इनवाइट किया था अपनी बर्थडे पार्टी पर। शाम को मेहमान आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए थे, जबकि आज तो मायरा भी सुर्ख रंग की मैक्सी में वहाँ मौजूद थी, जिसने इसके लिए बदन को हल्का बेचा हुआ था। सारे एक दफ़ा मुड़कर तो इसे लाजमी देख रहे थे, जिस पर इसे अपने हुस्न पर
तफाखर होने लगा था। वो टहल टहल कर फिर रही थी। उम्मीद थी आज इसको किसी न किसी तरह शहरवन कादवानी से सामना हो ही जाएगा। वो इसको अपनी जुल्फ़ों के जाल में फंसा ही लेगी। इस हद तक वो होश आइंदा थी जब इसने बाहर से आती मारवी को देखा, जो बहुत नहायत सादा लिबास में मुलबस थी। वो अंदर की जानब आ रही थी, हाथ में शायद कोई गिफ्ट थाम रखा था। वो आंखों में तहकीर लिए इसकी जानब बढ़ी। ऐसा कैसे हो सकता है, इसका मजाक न उड़ाए। वो अपने आप को समझती क्या थी? आखिर मिडिल क्लास फैमिली से होकर इसकी यहाँ आने की जुर्रत भी कैसे हुई थी? इसको अच्छी तरह सबक सिखाने के लिए इसकी तरफ बढ़ी थी। तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई यहाँ इतनी शानदार पार्टी में आने की? तुमने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा घर भी देखा है जहाँ तुम मुंह उठा चली आ रही हो? अभी इसने अंदर ही कदम रखा था, एकदम से मायरा इसके सामने चला उठी थी, जहाँ सब मेहमानों का मरकज एकदम वही बन गया, जो एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। ये तुम क्या कर रही हो मायरा? रास्ते से हटो, मुझे अंदर जाना है। फिर इसकी साइड से निकलने लगी थी। बगैर किसी लड़ाई झगड़े के वो आज माया का दिन खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन शायद मायरा इस किस्म के मूड में न थी। इसको तो लड़ना था, इसको यहाँ से बाहर निकालना था। ऐसे कैसे हो सकता था कि वो अपनी इतनी हरकत बर्दाश्त कर लेती? इसलिए इसको बाजू से पकड़ते हुए दोबारा बाहर फटकारता था। खबरदार, जो तुमने इस घर के अंदर कदम रखा, तुम जैसे लोगों की औकात नहीं है इस बड़े घर में आने की, समझी तुम? यहाँ से निकल जाओ। हो कौन तुम यहाँ आने वाली? अपने कपड़े देखे हैं? वो एकदम इसके कपड़ों पर तंजिया करते हुए कहका लगाती बोली, जिस पर सभी लोग इसका देखकर हंसते लगे। इस कदर तौहीन पर इसकी आंखें नम हुई थी और आंसू गालों पर फैल गए। इसका दिल किया यहाँ से भाग जाए, मगर अपनी दोस्त का क्या करती जिसने इसको मिन्नतें करके बुलाया था। वो कब से इसकी राह में देख रही थी और मायरा थी कि इसको अंदर जाने ना दे रही थी। इसके रास्ते में रुकावट बनकर खड़ी थी। वो एकदम फिर उठी और अपनी अंदर हिम्मत जमा करते वो वहीं थी। मेरे रास्ते से हट जाओ मायरा, मुझे यहाँ माया ने बुलाया है। मैं इसे मिले बगैर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। वो एकदम पता नहीं कैसे इतनी हिम्मत से बोली थी कि मायरा को इसकी ज़बान चलाने पर शदीद तैश आया। इससे पहले कि वो इसके मुंह पर रख कर थप्पड़ मारती, किसी ने पीछे से ही इसका हाथ थाम लिया। यूं बिल्डी बेच, मगर साथ वाले को देखते ही इसके चेहरे का रंग फक हुआ था, क्योंकि वहाँ माया मौजूद थी, जो इसे कहर बरसाती नज़रों से देख रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेस्टी पर हाथ उठाने की? ये हाथ जड़ से उखाड़ कर ना फेंका। इसका हाथ इतनी ज़ोर से मरोड़ कर बोली कि मायरा की एकदम चीख बुलंद हुई थी। साथ ही रख कर थप्पड़ इसने मायरा के मुंह पर मारा था, जिसे वो लड़खड़ा कर खुद भी नीचे गिर गई थी, जैसे थोड़ी देर पहले इसने मारवी को नीचे फेंका था। सारे ये तमाशा हैरत से देख रहे थे। क्या वो सादा सी लड़की वाकई माया कादवानी की दोस्त थी? फिर तो इससे भी बच कर रहना चाहिए था और ना ही इसको तंग करना चाहिए था। सारे एक दूसरे को देखते हुए मानी हैस नज़रों से एक दूसरे में बातें करने लगे। जब माया ने सिर्फ फौरन अपनी बाहों में थामा था। क्या तुम ठीक हो मारवी? इसकी तरफ देखते हुए परेशान नज़रों से बोली, जिस पर वो मुश्किल से ही सही सुर्ख बहती आंखों से इस बात पर सर हिलाई गई थी। चलो मेरे साथ। वो इसको अपने साथ अंदर ले आई थी और इसको पानी पिलाते हुए शांत कर रही थी। क्या तुम ठीक हो? इसकी बात पर मुस्कुरा कर रह गई थी। कितनी फिक्र थी इसको इसकी दोस्त की, मगर इसका यहाँ रुकने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। ये सब लोग तो हैं ही डबल स्टैंडर्ड, सिर्फ कपड़ों से लोगों को जज करते हैं, मगर इनकी बोलती तो आज मैं अच्छी खासी बंद करके ही रहूंगी। वो इनको देखते हुए मायनी हैस नज़रों से बोली, जिस पर नासमझी से मारवी ने इसे देखा था। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, बस ये पकड़ो, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आई हूँ और जाओ ऊपर मेरे कमरे में जाकर चेंज कर लो। लेफ्ट साइड पर थर्ड रूम है, मगर मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वो मिनमनाई, जिस पर इसने आंखें दिखाई थी। इसकी बात को सुनते ही वो इसके हाथ से ड्रेस थामती ऊपर जा चुकी थी। ऊपर जाते लेफ्ट साइड पर थर्ड रूम ढूंढने लगी थी, लेकिन इसने तो ये बताया ही नहीं था कि आमने वाला रूम था या सामने, क्योंकि दोनों साइडों पर कमरे थे। वो अल्लाह का नाम लेती है कमरे में घुस चुकी थी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई थी, इसे एसी की ठंडक ने इसके जिस्म को सुकून में मुयस्सर किया था। वह झुरझुरी लेते हुए इस कमरे को इश्तियाक वाली नज़र से देखने लगी थी। इसका ग्रे और वाइट कलर इस कमरे में रहने वाले की नफासत के बारे में मुंह बोलता सबूत था। क्या माया अपने कमरा इतना साफ सुथरा रखती है? इसको क्या ग्रे वाइट कलर ना पसंद है? वो एकदम सोच कर रह गई, क्योंकि हाल ही में माया ने इसको बताया था कि इसको डार्क कलर ज़्यादा पसंद नहीं है, बल्कि लाइट कलर्स पसंद है। वो इन सोचों में थी जब वो वॉशरूम का रुख करती हुई अंदर चली गई। वॉशरूम में भी नए तर्ज का बना हुआ था, जिसमें हर आसाइश मौजूद थी। वो हैरत से आंखें फाड़े अंदर के मंजर देखने लगी और फिर अपनी हैरत पे काबू पाते वो फौरन ड्रेस को खोला जो माया ने इसे पहनने के लिए दिया था। वो एक सफ़ेद रंग की नहायत खूबसूरत मैक्सी थी, जिसके बाजू कंधे के नीचे से शुरू होते थे, कोहनियों तक ख़त्म हो
जाते थे, जबकि इसके पिछले साइड पर जिप लगी हुई थी, जिससे इसके पीछे से गर्दन साफ नुमायाँ होने वाली थी। वो तो हैरत से ड्रेस को देख रही थी कि वो ऐसी ड्रेस कैसे पहनेगी। ऐसे कपड़े तो इसने कभी ख्वाब में भी ना देखे थे। वो बेशक बेहद प्यारे थे, मगर वो इनको कैरी कैसे करती, वो सोच कर रह गई। इससे पहले कि वो मुंह धोने के लिए शावर ऑन करती, इसका हाथ गलत बटन पर लग चुका था। इसके सारे कपड़े गीले हो चुके थे। अब तो इसके पास कोई चारा भी ना रहा, इसको यही ड्रेस पहनना पड़ा था। जैसे इसने वो ड्रेस पहना, अपने आप को वॉशरूम के लगे आईने में देखा तो हैरत से दंग रह गई। क्या वो इस हद तक हसीन लग सकती थी? इसने कभी जिंदगी में भी सोचा ना था, मगर ये सोच ही इसके चेहरे को शर्म से सुर्ख कर गई थी। वो ये पहनकर बाहर जाएगी। इसने जैसे ही बाहर कदम रखना चाहे, इसकी हिम्मत न पड़ी। एक गहरा सांस भर के इसने खुद को तैयार किया और वॉशरूम का दरवाज़ा खोला। जब आगे एक अजनबी शख्स को देखते, वो अपने हुलिये को देखते, इसने चीख मारते फौरन दरवाज़ा बंद करना चाहा था। जैसे सामने मौजूद शहरवान कादवानी धक्का देकर खोल चुका था, जिस पर इसकी आंखों में खौफ जगमगाने लगा। शहरवान एक माफिया मैन था, अंडरवर्ल्ड का, जो नहायत शफाक मशहूर था। इसको अपनी चीज़ों में किसी भी मुदाखलत पसंद नहीं थी, और झूठी चीज़ों तो कतन इस्तेमाल करना पसंद नहीं था। इसलिए ना ही इसके कमरे में कोई आता था, ना ही इसके कमरे से में किसी को आने की इजाज़त थी, सवाए माया के। मगर आज जैसे ही इसने एक वेटर से सुना कि किसी को इसने अपने कमरे में जाते देखा, तो गुस्से से इसकी शर्नें पटने लगी। इसका पक्का इरादा था जो अंदर जो भी है इसकी जान अपने हाथों से लेता, क्योंकि वो किसी को भी माफ़ करने का आदी ना था, और किसी ने इसकी रियासत में कदम रखकर खुद को मौत के मुंह में धकेला था। फौरन तेज़ी से अपने कमरे में आते इसने चारों तरफ जायज़ा लिया था। कोई हसास मवाद किसी ने छेड़ने की कोशिश नहीं की थी, मगर वेटर की बात याद आते ही वो कोई लड़की थी। इसका गुस्सा और सर चढ़कर बोलने लगा था, क्योंकि ऐसी बहुत सी लड़कियां थी जो इसको अपनी तरफ माइल करने के लिए कोशिश करती थी और इसे रजाने की कोशिश करती थी। इसलिए वो ऐसी लड़कियों से कोसे दूर ही रहता था। बल्कि इसको किसी लड़की ज़ात पर एतबार नहीं था, जो सिर्फ इसकी दौलत को पसंद करती थी। आजकल कोई भी मोहलिस मालूम नहीं होता, इसलिए इसने सभी लोगों से किनारा कर लिया था, और माया को भी यही हदायत दी थी यूनिवर्सिटी जाते हुए कि वो किसी से दोस्ती नहीं करेगी। मगर माया ने इसको बताया था कि वो एक बहुत ही मोहलिस लड़की को अपनी दोस्त बना चुकी है, जिसमें कोई भी बनावटी तासुर मौजूद ना था, जिस पर शहरवान कादवानी अच्छा हंसा तपा तो, मगर क्या करता, इसकी बहन की जिद के आगे वो भी मजबूर था। मगर इसको भी मिलने का तजस्सुस था कि आखिर कौन सी लड़की थी जिसने माया जैसी अड़ियल लड़की को जेर कर लिया था। मगर अभी तो इस वक्त वो वॉशरूम में मौजूद लड़की को कत्ल करना चाहता था, जो बगैर इसकी इजाज़त के इसके वॉशरूम में मौजूद थी। ज़रूर इसको अपनी तरफ माइल करने आई थी। ये सोच आते ही इसका गुस्से से चेहरा सुर्ख पड़ गया था। वो एक एक पल गिन रहा था कब वो बाहर आएगी और इस लड़की का काम तमाम करे। जैसे वॉशरूम का दरवाज़ा खुला तो सामने मौजूद लड़की को देखकर इसके साब शल हुए थे। वो जो गुस्से से इस पर दाड़ने का इरादा रखता था, इस मासूम परी को देखते जैसे इसकी दुनिया हिल गई थी। मगर अगले ही लम्हे वो लड़की चीख मारते दरवाज़ा बंद करने लगी थी, जब वो बीच में टांग अटकाता दरवाजे को एक ज़ोरदार धक्का मारते दोबारा खोल चुका था, और वो लड़की खौफ से पीछे होने लगी थी। इसकी आंखों में खौफ देखकर न जाने इसे क्यों अच्छा लगा था। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम पीछे ले रही थी, जबकि वो एक एक बारी कदम इसकी जानब उठाकर करीब तरीन आ गया था। इसकी कमर दीवार से जा लगी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो लड़की? तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त किसने दी? इसका लहजा सरसराता हुआ था, जो कि मारवी के अंग अंग को जलाकर रख गया था। वो बुरी तरह खौफजदा हो चुकी थी इस शख्स से। मैं तो यहाँ ड्रेस चेंज करने आई थी। माया ने मुझे अपने कमरे में भेजा था, वो लेफ़्ट साइड पर, वो थर्ड रूम में। वो एकदम हल्कलाते हुए बोली थी। तो इसको अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका था कि माया ऊपर किसी को भेजने की गलती नहीं कर सकती। यकीनन अगर इसने इसको अपने कमरे में भेजा तो वो ही इसकी बेस्ट फ्रेंड थी, जिसका वो जिक्र करती रहती थी। इसने एक ऊपर से नीचे तक नज़र इस पर डालते हुए इसको गहरी नज़र से देखा था, जैसे देखना चाह रहा था इसमें क्या खास बात है जो अपनी बहन के बाद इसको भी अंदर तक हिलाकर रख गई थी। इसने गौर से इसको देखा और इसके करीब आने लगा। जैसे ही वो नरम रस भरे लबों पर झुकने लगा था, वो एकदम इसको पीछे धकेलती गई थी। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दें, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, आइंदा मैं कभी भी यहाँ नहीं आऊँगी। वो इसके आगे हाथ जोड़ते हुए बुरी तरह रोते हुए बोली थी, जिस पर वो अच्छा सा शौक हुआ था। इस शख्स की कुर्बत के लिए हर लड़की मरती थी, और ये थी कि जिसे वो अपनी कुर्बत से आशना करवाना चाह रहा था। वो इस पर एक निगाह डालना भी ज़रूरी नहीं समझ रही थी। ये बात इसे बुरी तरह हिला रही थी, जबकि इसके नज़र अंदाज पर इसकी थोड़ी को दबोचते हुए इसका चेहरा अपने सामने कर गया था। इसके बहते हुए आंसू पर अपने लब रखे थे, जिसने मारवी को बुरी तरह साकत कर दिया था। इसका सांस भी आना बंद हो चुका था, जैसे वो अच्छी तरह महसूस कर चुका था। अगले ही लम्हे वो इसके लबों पर झुका था और इसके अंदर अपनी सांसें मुंतकिल करने लगा था। जब मारवी होश में आती, एकदम इसको
धक्का देते बाहर भाग गई थी। इसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। इंटरेस्टिंग, वो अपने लबों पर जुबान फेरते बोला। क्या हुआ मारवी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब ठीक तो है ना? माया जो इसको इतनी खूबसूरती से सजा देख इसकी तारीफ करने वाली थी, किसका घबराया चेहरा देखकर इसकी परेशानी की वजह पूछ गई थी, जो इस वक्त काफी हद तक घबराई हुई लग रही थी। वो माया, तुम्हारे कमरे में कोई था? वो शख्स पता नहीं कौन था, वो मेरे इतने करीब आ गया था, इसने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की। वो सिसकती हुई वो बोली, जिस पर माया आंखें फाड़े से देखने लगी थी। क्या बात कर रही हो? कौन था मेरे कमरे में? मेरे कमरे में जाने की इजाजत किसी को भी नहीं। तुम ही कमरे में गई थी ना? वो इसको देखते परेशानी से बोली, जिस पर इसने तेजी से हाँ में सर हिलाया। हाँ, मैं तुम्हारे ही कमरे में गई थी, वही जो ग्रे कलर का है। इसकी बात सुनते ही माया की आंखें हैरत से बड़ी हुई थी, क्योंकि ग्रे कलर का रूम तो सिर्फ और सिर्फ मेंशन में शहरोन कादवानी का ही था, जिसे सुनकर माया दंग रह गई थी। भला इसका भाई किसी लड़की के करीब आने की कोशिश क्यों करेगा? मगर दूसरी तरफ मारवी थी, जो कभी झूठ नहीं बोलती थी। अब भला वो क्या सफाई थी? और हैरत तो इस बात की थी, वो शेर के कमरे में जाकर भी जिंदा वापस निकल आई थी इसकी कछार से। अच्छा अच्छा, तुम रिलैक्स करो, देखो मेरी केक कटिंग का वक्त आ गया है, चलो मेरे साथ। वो इसके आंसू साफ करते हुए इसे खींच कर टेबल के पास ले गई थी, जो लाउंज के दरमियान में रखा हुआ था। सारे ही इसके दोस्त इर्द गिर्द खड़े होकर जोर जोर से हैप्पी बर्थडे गुनगुनाने लगे थे, जब इसने मारवी का हाथ पकड़ते हुए केक कट किया था। केक काटते ही इसने सबसे पहले जिसके मुंह में केक डाला था, वो कोई और नहीं बल्कि शाहरुन कादवानी था, जिसको देखकर एक दफा फिर मारवी के जिस्म में कैपकपी तारी हो गई थी बुरी तरह से। वो एक कदम पीछे लेने लगी थी, जब माया ने झट से पलटते बाकी केक का हिस्सा इसके मुंह में डाला था। अपने डर को पिस पुष्ट डालते ही इसने जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाते वही केक का टुकड़ा थाम के माया के मुंह में भी डाल दिया, और बाकी का इसके मुंह में लगा दिया, ताकि खुद को भी खौफ से और इस आदमी की गहरी निगाहों से बाहर निकल सके, जो यकटक इसको ही देखा जा रहा था। इसकी गहरी नजरें तो माया ने भी मारवी पर महसूस की थी, और इसको दाल में कुछ काला लग रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सभी घर जाने लगे थे, जब मारवी भी माया से जिद करने लगी थी इसको घर छोड़ आए, क्योंकि काफी रात हो चुकी थी। रात 10 बजे तक वो कभी बाहर नहीं रही थी, मगर आज वो माया के साथ मौजूद थी, क्योंकि इसने इसकी जिम्मेदारी ली थी। इसकी रोती सूरत देखकर माया को इस पर तरस आ ही गया। और वो दिन कब आएगा जब तुम मेरे घर रुकोगी? वो गहरी सांस भरते हुए बोल रही थी, जिस पर वो एक बार फिर मिन्नत करने लगी, प्लीज यार मुझे घर छोड़ दो, वरना मेरे बाबा तो मुझे कभी तुम्हारे घर दोबारा नहीं आने देंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहती। वो मुमुराते हुए बोली, जिस पर वो कहका लगाकर, चलो मैं तुम्हें छोड़कर आती हूँ। अभी वो जा ही रही थी इसके साथ बाहर, जब पीछे से शाहरवान कादवानी की कराहत आवाज आई, जिसने मारवी के कदम तक मंजमद कर दिए। कहाँ जा रही हो माया? भाई, वो मैं अपनी दोस्त को घर छोड़ने जा रही हूँ। मैंने इसके बाबा से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, मैं इसे खुद घर छोड़कर जाऊंगी, इसलिए जा रही हूँ इसके साथ। वो शहरवान को देखते हुए बोली थी, तुम्हें पता है ना तुम्हारी जान को खतरा है, हमारे इर्द गिर्द काफ़ी दुश्मन हैं, इसलिए मैं तुम्हें इतनी रात को तनहा बाहर नहीं जाने दे सकता। तुम जाओ, मैं छोड़ आता हूँ इसे। इसने मारवी पर गहरी निगाह डालते हुए कहा था, जब वो रोने को हुई थी, जिस पर माया ने इस पर तरस खाते हुए शहरवान कादवानी को घूरा था। भाई, आप जो भी कह लें, मैं इसके साथ जाऊंगी। अगर आपको साथ आना है तो आप आ सकते हैं। वो इसका हाथ पकड़े बाहर निकल गई थी। पीछे शहरवान कादवानी जब्त करके रह गया, क्योंकि वो कुछ लम्हे परिविश के साथ गुजारना चाहता था। इसकी बहन इसको कोई भी मौका इसके ख्याल में नहीं देना चाहती थी। पूरे रास्ते इसकी गहरी नजरें सिर्फ और सिर्फ मारवी के चेहरे पर टिकी रही। जैसे ही इसका घर आया, इसने चादर अपने गिर्द लपेटी और भाग गई थी। जब तक वो अंदर न चलेगी तब तक वो लोग बाहर ही रुके थे। इसके अब्बू ने भी बाहर मुड़ के देखा, जहाँ माया हाथ हिला रही थी। इसकी बचकानी हरकत पर मुस्कुराकर अंदर चले गई। जब शहरवान कादवानी की नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया और इसके घर को गौर से देखा था, अब तो इसके घर का भी मालूम हो चुका था, जब चाहे मर्जी यहाँ आ सकता था। वो ज़ेरे लब सोचकर मुस्कुरा दिया था। इसका दिल तेजी से धक धक कर रहा था। एक हफ्ते पहले के मंजर को याद करते जो सब हुआ था, वो इसकी सोच से भी बाहर था। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम चांद को तक ही रहा था, जब दब की आवाज आई थी छत पर। इसने समझा कोई बिल्ली है। सर झटक कर वह दोबारा खिड़की से बाहर देखने लगी थी। जब इसे लगा इसके पीछे कोई खड़ा है, तो इसकी गर्दन के बाल तक खड़े हो गए। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, किसी शख्स को देखते वो कोई चीज मारने लगी थी, जब अगले शख्स ने इसके मुंह पर अपनी बारी हथेली रखते इसको दीवार से टका था। इस चीज को पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, वो मिनमनाई। छोड़ने के लिए तो नहीं पकड़ा है। वो इसके लिए एक एक नक्श को अजबर करता हुआ बोला था। इस मनमोहने चेहरे ने एक हफ्ते से इसकी नींद हराम कर रखी थी। नींद तो जैसे इसकी पलकों से रूठ ही गई थी। अब जब इसके चेहरे को देख रहा था तो दिल को करार आया था। दिल कर रहा था इसके हर एक नक्श को अपने लबों से छूकर अपने दिल की तशनगी मिटाए, मगर जानता था
اس سب میں اس لڑکی کی جان پر بن آئے گی۔ جیسے ہی ماروی نے شخص کا چہرہ دیکھا تو اس کا وجود برف کی مانند جم چکا تھا، کیونکہ سامنے کوئی اور شہرون کادوانی تھا، اس کی دوست کا بھائی۔ اس کے گھر میں اس رات کے پہر کیا کر رہا تھا، یہ سوچ کے اس دماغ معاف ہو گیا۔ نظریں تیر کی تیزی سے دروازے کی جانب گئیں، جہاں وہ شاید کنڈی لگا آیا تھا۔ اسے احساس تک نہ ہوا تھا اتنی خاموشی سے وہ کیسے آ سکتا تھا۔ یہی سوچ رہی ہوں نا کہ میں اتنی خاموشی سے کیسے آ گیا، تو بتا دوں یہ میری کوالٹی ہے، بغیر چاپ کے بھی کچھ بھی کہیں بھی پہنچ جاتا ہوں، اور کسی کے دل میں بھی۔ وہ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتا ایک دم اس کے لبوں پر جھکتا ہوا بولا۔ وہ اتنی شدت سے جھکا تھا کہ پھڑپڑا کر رہ گئی، اسے دور دھکیلنے لگی، مگر وہ تو جانے کب کا پیاسا تھا جو اس سے دور ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دھکا مار کے ماروی بری طرح سسک کر رہ گئی تھی، آواز نہایت آہستہ تھی۔ یہ بھی ڈر تھا کہیں اس کے ماں باپ کمرے میں اندر داخل نہ ہو جائیں، اگر ہو جاتے تو یہ سوچ ہی سہونے روح تھی۔ اس کے ماں باپ اس پر بالکل یقین نہ کرتے کسی غیر مرد کو اس کے کمرے میں دیکھ کر۔ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، آپ میری دوست کے بھائی ہیں، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ کتنی بار کہوں میں آپ کو، میں آپ لوگ دل بہلانے کی چیز نہیں ہوں، میں انسان ہوں، مجھے بھی درد ہوتا ہے۔ وہ ہر چیخ پڑی جب وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا نا، تمہیں تب تک چھوؤں گا جب تک تم میرے نکاح میں نہیں آ جاتی، تو اس بار نکاح کے لیے تیار رہنا۔ وہ اس کو گہری نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا، جس پر وہ جھٹکے سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ کیا؟ وہ حیرت سے چلائی۔ ہاں بالکل ٹھیک سنا تم نے، نکاح۔ اب میں نکاح کے بعد ہی تمہارے قریب آؤں گا اور تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ انکار کی کوئی صورت نہیں، اگر تم نے انکار کیا تو یاد رکھنا کہ نہ تمہارے لیے اچھا ہوگا نہ ہی تمہارے گھر والوں کے لیے۔ یہ کہتا وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ پیچھے وہ ساکن سی وہیں مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ اگلے دن وہ تیز بہار میں پھینک رہی تھی۔ اس نے یونیورسٹی جانے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کی بہنیں بھی اس کو دیکھ کر پریشان تھیں۔ جب اس کی والدہ نے اندر آتے اسے اطلاع دی کہ تیار ہو کر باہر آ جائے، وہ کشمکش سے اپنی والدہ کو دیکھنے لگی۔ ان کی کہی پر عمل تو کرنا تھا، اس لیے نہا دھو کر کپڑے بدلتی باہر آئی، جہاں ایک خوبصورت سی نہایت سوبر قسم کی عورت موجود تھی، ساتھ میں مایا کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئی تھیں، جو اس کو دور سے دیکھتے ہاتھ ہلا گئی۔ وہ آ کے اپنے باپ کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ جب اس عورت نے بولنا شروع کیا تھا، بھائی صاحب ہمیں بس آپ کی بیٹی ہی چاہیے، اس کو ہم اپنی بیٹی بنا کے رکھیں گے۔ شہروان اور مایا کے ماں باپ تو زندہ نہیں ہیں، میں ہی ان کی خالہ موجود ہوں، اس لیے میں یہ رشتہ لے کر آئی ہوں۔ میں نے اس بچی کو مایا کے برتھ ڈے میں دیکھا تو میرے دل میں آیا کہ میں اس کو اپنے گھر کی بہو بنا لوں، اس لیے اپنی بیٹی کو ہماری جولی میں ڈال دیں۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے امید بھرے لہجے میں بولی تھی، جس پر انہوں نے ایک نظر ماروی کو دیکھا تھا، جو خود بھی انہی کی طرح حیران تھی، مگر ان کو یہ بھی احساس تھا کہ خوش قسمتی بار بار کسی کا دروازہ نہیں کھٹکاتی۔ انہوں نے کچھ سوچنے کے وقت مانگا، مگر وہ دل ہی دل میں اقرار کرنے کے طے کر چکے تھے، کیونکہ اس کے علاوہ ان کی اور 2 بیٹیاں تھیں۔ انہیں ان کی بھی شادی کرنی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ایک بیٹی کی شادی اچھے گھر میں ہو جاتی تو باقیوں کے رشتے بھی اچھے ہی گھر میں ہوتے، اور ان کی بھی ذمہ داری سے جلد سبکدوش ہو جاتی۔ ماروی سے پوچھنے کے بعد اگلے ہی دن وہ ہاں کر چکے تھے، جبکہ مایا کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، کیونکہ وہ اس کی بھابھی بن کر اس کے گھر آنے والی تھی۔ انہوں نے بات کی تھی کہ وہ رخصتی ساتھ ہی چاہتے ہیں، جبکہ ماروی کے ابا نے اس بات پر انکار کیا تھا، کیونکہ ابھی اس کی اسٹڈی نامکمل تھی، اس لیے شہروان کی خالہ نے کہا تھا وہ وہاں رہ کر بھی اپنی اسٹڈی جاری رکھ سکتی ہے، اس لیے ایک ہی ہفتے کے اندر اندر انہوں نے شادی کے سارے انتظامات طے کر لیے تھے۔ جیسے ہی مایا نے شہروان کو مہندی کی پکس دکھائیں ماروی کی، تو اس سے رہا نہ جا رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا اڑ کر اس تک پہنچ جائے، مگر اس کو اپنے اوپر بندھایا تھا، اپنی شدتوں کے دریا کو لگام دینی تھی، کیونکہ انہیں نکاح سے پہلے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ اس چیزوں کا وعدہ کیا تھا اس نے، مگر کل جب وہ اس کی دسترس اس میں ہوتی تو اس کے کس کس کو پور کو چھوئے گا، وہ اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ سرشاری سے اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا، جس کی بلائیں مایا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں لی تھی۔ اس کا بھائی پہلی بار زندگی میں اسے دل سے خوش نظر آیا تھا، ورنہ نے ہی بہت سی مشکلیں جھیلی تھی، اپنی زندگی کو ہاتھوں پہ لے کر چلتا تھا۔ اس کا بھائی اس کی جان بچانے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا، انڈر ورلڈ میں جا پہنچا تھا، غیر قانونی کام کیے تھے، مگر اب وقت آ گیا تھا وہ اس سب گندے دھندے کو چھوڑ کر اپنی لائف کی طرف دھیان دے، اور یقین ماروی وہ ایسی روشنی تھی جو اس دلدل سے نکال کر اچھائی کی طرف لے جاتی۔ ان کی شادی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ اسے ایک ہفتے میں وہ بالکل بھی یونیورسٹی نہیں گئی تھی، اس نے لیو لے رکھی تھی۔ مایا بیچ بیچ جاتی رہی، مگر اس نے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی تھی کہ اس کے بھائی کی شادی ہو رہی ہے۔ یقیناً اگر وہ کلاس میں کسی کو بھی بتاتی تو وہ ماروی کا جینا حرام کر دیتے، اور وہ یہ بالکل نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ تب تک خاموش رہی جب تک شہروان کادوانی کی ویڈنگ نیوز میڈیا میں بریک نہیں ہوئی۔
हर तरफ इस शादी का चर्चा था। मीडिया के कई लोग इसकी शादी में आए थे। इसने ग्रैंड हॉल में बुकिंग करवाई थी जो बहुत आलीशान था और सबकी ज़बान ज़द आम पर इसके मशहूर असहशात और डेकोरेशंस थी। हर कोई मारवी की किस्मत पर रश्क कर रहा था, मगर वह दिल में बुरी तरह खौफजदा थी कि जाने आज वो इसके साथ कैसा सलूक करने वाला था। वो इस छुई मुई सी लड़की को अपने पहलू में देखकर खुशी से फूले न समा रहा था। निकाह आनन फानन हो चुका था और वह जल्द ही रिश्ता अज़दवाज में बंध चुके थे। जैसे ही निकाह निकाह मुकम्मल हुआ, वह साथ ही मारवी के हाथ को अपने हाथ में लेकर थाम चुका था, सबकी नज़र से जाकर जिस पर वो कसमसा कर रह गई। क्या कर रहे हैं? छोड़ें, सब देख रहे हैं, वो इसके कान में मिनमिनाती हुई बोली, जिस पर वो ऐसे बन गया था जैसे इसने कुछ सुना ही ना हो। मुझे आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी, वो इसे तंग करने बोला, जिस पर वो देख कर रह गई। तंग करने का कोई मौका तो ये शख्स हाथ से जाने नहीं देता था। तंग तो तुमने मुझे किया है। लड़की हर वक्त तंग करके रखती हो, तुम्हारी यादें हों या तुम्हारी बातें मेरे जहन से नहीं जाती, मगर आज रात मैं तुम्हें तंग करने का इरादा रखता हूँ और तुम एक लम्हे के लिए भी नहीं सो सकोगी, ये सोचना भी मत। वो इसकी तरफ देखते हुए शरीर लहजे में बोला था जिसने इसकी अच्छे से आसान हता कर दिए थे। रात को जब माया इसके कमरे में छोड़कर आई तो इसने फ़ौरन माया का हाथ थाम लिया। प्लीज़ माया, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। वो घबराई हुई सी, जिस पर वो माया का दिल किया इसे खूब तंग करे, मगर आज की रात इसने अपने भाई के लिए छोड़ दिया। कुछ नहीं होता मेरी जान, वो बहुत प्यार प्यार से रखेंगे तुम्हें, बहुत मोहब्बत करते हैं वो तुमसे। अपने भाई को कभी किसी के लिए इतना बेसब्रा नहीं होते देखा जितना वो तुम्हारे लिए तरसते हैं। प्लीज़ तुम इन्हें खुश रखना मेरी जान। मेरे भाई ने बहुत से दुख देखे हैं इस ज़िंदगी में, शायद तुम ही इनकी पहली खुशी हो। इस खुशी को हाथ से जाने मत देना। वो नामा को कहकर जा चुकी थी। पीछे वो कश्मकश का शिकार थी। अगर वो इतने ही दुख झेल चुका था तो इसने क्यों ही चुना था। वो तो किसी भी अमीर लड़की से शादी कर सकता था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ तो अपनी शेरवानी उतार कर फेंकते इसने मारवी को देखा, जो आंखें और मुंह फाड़े इसे देख रही थी। ये क्या कर रहे हैं? वो हैरत से उछली थी। वही जो आज रात करते हैं, सुहाग रात मनाने वाला हूँ। वो बेड पर आते आराम से इसकी ज्वेलरी से आज़ाद करते हुए बोला था और फ़ौरन इसे एक नाइटी थमाई थी। जाओ इसे पहन कर आओ। ये क्या पागल हैं? मैं ये पहन कर आऊँगी? ये तो इतनी छोटी है। वो शर्म से दोहरी होती बोली, तो तुम्हें इसमें ही देखने वाला हूँ, कोई अनजान शख्स तो नहीं। वो इसको वॉशरूम में धकेलते बोला। जैसे ही वो बाहर आई तो इसकी नज़रें अपने ऊपर गड़े देख वो दोबारा अंदर भागने लगी। जब इसने इसको उठाते बेड पर लापट आह आह जानम, आज की रात तो सोचना भी मत, तुम सिर्फ मेरी मालकियत हो, शहरवान कादवानी की। वो इसकी गर्दन पर जलते हुए लब रखते हुए बोला तो एक एक कर गहराई में जाते जा रहे थे, जिसने मारवी की जान निकाल दी थी। आपने मुझे ही क्यों चुना? वो नम आंखों से इसकी तरफ देखते हुए बोली थी। इसकी शिद्दतों से वो बेहाल हो चुकी थी, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी का हासिल हो, जो किसी भी बनावट से पाक है, और मैं तुम्हारे ही साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। जो मोहब्बत मुझे तुमसे हुई है आज तक किसी से नहीं हुई, और ना ही मैंने कभी किसी को मोहब्बत की निगाह से देखा, मगर तुम वो वाहिद और पहली औरत हो जिस पर मैं अपना तन मन निसार करने को तैयार हूँ, और तुमसे भी ऐसा ही चाहता हूँ। क्या तुम मेरी हमसफ़र बनोगी हमेशा हमेशा के लिए? इसकी आंखों में ऐसे सच्चाई थी कि वो एक पल के लिए भी इसको इनकार ना कर सकी थी और अपना आप इसे सौंप गई थी। पूरी रात बीतती रही और इसको अपनी मोहब्बत में भिगाता रहा, कभी आंखों को चूमता, कभी लबों को, कभी इसकी गर्दन को अपनी शिद्दतों का निशाना बनाते हुए इसको पूरी रात भिगोता रहा था। वो इसकी मोहब्बत में पूरी तरह से डूबते हुए गुलनार हो रही थी। एक के बाद एक शिद्दतें वो इसके अंदर मुंतकिल करता इसको अपने रंग में रंग रहा था, जबकि मोहब्बत भरी निगाहों से इसको देख रही थी, जिसने इसको अपने बहुत कीमती गुड़िया की तरह समेटा था। मैं हमेशा आपकी बन के रहूँगी शहरवान, आप भी कभी मुझसे बेवफाई मत करिएगा। वो इसकी आंखों में देखते हुए बोली, जिस पर वो इसकी आंखों पर लब रख गया था। तुम मेरा इश्क हो जिससे मैं सिर्फ वफा कर सकता हूँ, बेवफाई का मर्तकब ठहरा तो इस दिन तुम्हारे कदमों में जान दे दूंगा। ये वादा है शहरवान कादवानी का। वो इसके लबों को अपने लबों में लेता हुआ बोला था और इसकी सांसों को एक एक करके अपने अंदर अंडेलने लगा था। वो सिसक रही थी, साथ साथ मारवी भी इसकी शिद्दत सहते इसके नाखून शहरवान कादवानी की कमर में दसते जा रहे थे। मारवी की कलाइयों को एक हाथ में थाम लिया, इस वक्त पूरी तरह अपने अंदर समो लिया था और लाइट ऑफ कर दी थी। इस गहरी रात में इन दो प्रेमियों का मिलन हुआ था, जिन्हें हमेशा एक सच्ची मोहब्बत की हसरत रही थी। आज इन दोनों की हसरत पूरी हो चुकी थी।